for your success. And so much, even all the things which they are doing, and for the betterment of their children, and they just give a different type of satisfaction, and that you have to just show on the platform. So I will not take much time once again, because I advise you to go on the autobiography on the net. Also, you go and read it. That what is the contribution here is Hyderabad and Jammu and Kashmir has been great problem for this country during the after the freedom of the country. But even Sardar Vallabhbhai, it is the effort of the Sardar Vallabhbhai Patel that he made Hyderabad just united in the country. And even still the problem of Jammu and Kashmir, which was not moved by Sardar Vallabhbhai Patel because of Pandit Jawaharlal Nehru, was left. Still we are facing with this problem. I am sure that children, you will think about the country. Country is important than anything else. So you are also important, and if you are developing yourself in a different way, of course later in the phase of life, you will realize that, look, I have to think about the country. Because thinking, if you change your thinking, you change your achievements also, who are coming from different schools, all the students who are coming from different parts of this city. And again, I am very grateful to Sir, Director Sir, and the Joint Managing Director, Dr. Raj Singh Sir, who is here with us. I am feeling great proud, whether I say it is coming from the core of my heart, that I am here. I should have not been the guest, chief guest, rather it should have been given to Sir, who is a great, because I have been in the student only, nothing else. I remember that I am not much than a student. I am thankful to all of you. I am thankful to all the staff members here. I am thankful to organizer of this program who has given me opportunity to come on the stage. I bless all the students who are present here, and I am sure that you put all the efforts so that you, whatever the activity you participate, you try to excel with that activity. Winning is not important. Winning of anything is not important, but participation, the spirit of participation is more important. Once again, I bless you all. Thank you all. Thank you, sir. As throughout the day, we are going to have different competitions, different activities, and since our Managing Director is with us, I would like to request our Managing Director to shower his good wishes to you before you start these competitions. Sir. Swami Vivekananda Ji Maharaj के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए हमारे आज के अतिथि कवि विद्यार्थी रहे डॉक्टर आदिश्री जी, प्रधानाचार्य सदर कॉन्वेंट स्कूल श्रीमती विद्या सिंह जी, आपकी वाइस प्रिंसिपल अंतर कुमार जी, यहाँ के प्रिंसिपल जगदीश पांडे जी, 12 स्कूलों के आए हुए प्यारे बच्चे, वहाँ के अध्यापक, अपने स्कूल के यहाँ के अध्यापक अध्यापिकाएं, कॉन्वेंट स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं और यहाँ के प्रतिभागी बच्चे, समस्त कर्मचारी। इनका जन्मदिन विगत वर्षों में भी मनाया करते थे, लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज ये पहली बार मनाया। इसके पहले भी हम 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन अवसर पाने पर मनाते रहे। बच्चों, सबका स्वागत करते हुए मुझे इतना ही कहना है कि सरदार वल्लभभाई पटेल
का जीवन एक विद्यार्थी के रूप में, अभी यहाँ के प्रधानाचार्य मोदी है, उनका अगर तुम आगे बारी ग्राउंड करोगे तो कम एकेडमिक अचीवमेंट, उनका मेधापन, उनकी पढ़ाई, कितने अच्छे विद्यार्थी थे वो और कितने साहसी विद्यार्थी थे वो। और केवल अपने ही देश में नहीं, विदेश में भी जाकर उन्होंने कार्य किया, जिसमें उन्होंने काम किया। साहसी थे, समाज सेवी थे और राजनीति के पाठशाला में गांधी जी की शिक्षक में गुरुता में वो रहते थे और वहीं से बढ़कर के देश सेवा में राजनीति में आगे आए। उस समय एक छात्र और उनके साथ रहता था। जैसे एक गुरु के कई छात्र हैं, उसमें गांधी जी की पाठशाला में बहुत सारे छात्र थे। उसमें दो गुरु थे, सरदार वल्लभ भाई थे और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आई डोंट नो यू हैव टू रियलाइज, और लोग रियलाइज करेंगे, हमने जो फील किया है कि सरदार जी के व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को, देश प्रेम को, राष्ट्र प्रेम को हमेशा दबाया गया। जैसे एक शिष्य, एक गुरु के दो शिष्य हों, एक शिष्य ज्यादा मेधावी हो, ज्यादा लगनशील हो, ज्यादा चरित्रवान हो और एक शिष्य कुछ कमजोर हो, लेकिन हमेशा गुरु की आप कमजोर शिष्य की पीठ पर पड़े और जो मेधावी छात्र है उसको हमेशा दबा दिया जाए। तो सरदार जी के साथ यही होता रहा है और यह आज देश महसूस करता है कि अगर सरदार जी की पीठ पर दबाई गई होती तो आज भारतवर्ष किसी और रूप में होता और जो आज अभी उभरने वाला भारत है ये कभी उभर के बहुत आगे चला गया होता। जैसे कोई नकल करता हुआ छात्र, कोई कमजोर छात्र गुरु के द्वारा केवल पढ़ाया जाता है तो विद्यालय में प्रोत्साहित हो सकता है, उसको थोड़ा बहुत अचीवमेंट मिल सकता है, लेकिन वो खुद समझता है कि नंबर एक तो उसी का है। ऐसे ही जवाहरलाल समझते थे कि नंबर पद तो ये पटेल का था, लेकिन हमें जबरदस्ती मिला है। और देने वाला गुरु भी समझता था, कहता भी था कि पटेल भाई जो है तुम तो जीत गए, लेकिन जवाहरलाल को करने दो, क्योंकि जवाहरलाल से पटेल जी बड़े थे उम्र में और गांधी जी से 6 साल बड़े थे, छोटे थे। तो हमेशा पटेल को दबाया गया, उनके व्यक्तित्व को दबाया गया। अभी उस पर ये बड़ी खुशी की बात है कि इसको जैसे हम और लोगों का दिन मनाते हैं जो राष्ट्र के लिए कुछ काम किए हैं, तो राष्ट्र के लिए सबसे अधिक किसी ने काम किया गांधी जी के चिन्हों पर, जैसा बोलो वैसा करो, जैसा मन में सोचो वैसा बोलो, वही जीवन में करो, ये गांधी जी का मंत्र था। इसको किसने किया? इसको सरदार पटेल ने किया। इसको दबाया किसने? इसको दबाया दूसरे लोगों ने। उन्होंने कहा कि राजनीति से और व्यक्तिगत चरित्र से क्या मतलब है? व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी करते रहे, राजनीति में कुछ भी बोलते रहे। It was hypocrisy. It has been both organized by other leaders who have been, I don't know how and why, supported by गुरु जी, गांधी जी। तो हम चाहते हैं कि जैसे और सब्जेक्ट दिन बनाया गया, ये बड़े सौभाग्य की बात है, तुम लोगों के सौभाग्य की बात है, हम लोगों के सौभाग्य की बात है। इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। आज जो राष्ट्र का स्वरूप है भारत का, इसको बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनको हम याद करते हैं उसी तरह से जैसे राधा कृष्ण को याद करते हैं दिवस की तरह। उसी तरह से हम इस दिन को 31 अक्टूबर को हमेशा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे।
के बताए हुए उनके चरित्र का अनुकरण करते हुए अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे। आरती बनाई। जय भारत, जय हिंद। Now, before we have our further program, may I request our Chief Guest, Managing Director Sir and Principal Madam, to please have your seat, the assigned seat beside the stage, so that we can start the further program. Sir, please. सब एक है, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक। so that children may recognize you, and participants of painting and collage, just get up from your seat and follow your teachers to the auditorium. Madam, lead these children. आप नीचे मैडम, बच्चे आपको फॉलो करेंगे. Collage making students
अजीत सर थोड़ी सी सेटिंग मेरे मौके में रखूंगी, सामने के स्पेस कवर करेंगे, गर्ल बहुत पीछे है। अपनी हिस्ट्री में उन पांचों को एकता का पाठ पढ़ाया। मैंने सेवा भी तो की नहीं थी, पर मेरे बाद इनका क्या होगा? मेरे बेटे तो एकदम ही नालायक हैं, पता नहीं कौन करेगा इनकी सेवा। खैर छोड़ो, गायों को चारा देना है, बेचारी कब से भूखी है। बूढ़ा हो गया हूँ, कोई काम भी ठीक से नहीं होता, हड्डियां तो जैसे जवाब दे रही हैं। अरे बेटा गोपाल, बेटा इधर तो आना। क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा, मैं ये चारा उठाते उठाते गिर गया हूँ, अपने से उठ नहीं पा रहा, जरा मेरी मदद कर दो बेटा। अरे पिताजी, अभी तो सोने गया था और इतने अच्छे सपने देख रहे थे और आपने तो चिल्ला के मेरे सपने ही तोड़ दिए। सपने देख रहे थे बेटा? हाँ पिताजी। ठीक है, जाओ तुम सो, सपने का क्या है, फिर से आ जाएगा। जाओ बेटा जाओ। अच्छा पिताजी जाओ। हाँ जाओ तुम। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे बेटा राजीव, जरा इधर तो आना। क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा, मैं गिर गया हूँ, अपने से उठ नहीं पा रहा, जरा मेरी मदद तो कर दो। अरे पिताजी, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जा रहा हूँ, अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे बेटा, अच्छा जाओ, तुम भी जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा। अरे बेटा, तुम तो एक बात सुन लो। अब क्या हो गया पिताजी? बेटा, तुम्हारे भाइयों ने तो मेरी मदद की नहीं, तुम तो मेरी मदद कर दो बेटा, मुझे उठा दो। अरे पिताजी, आपको देकर मैं अपनी पारी लेने जा रहा हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं समझ में नहीं आऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। जाओ बेटा जाओ, पता नहीं कैसे उठूंगा मैं, कौन उठाएगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आके आपको उठा दूंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ पिताजी। आके उठाएगा, नालायक कहीं का, पता नहीं कैसे कैसे बेटे हैं मेरे। अरे बेटा सुनो, बेटा मेरी बात तो सुन लो एक बार। क्या हुआ पिताजी, क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? आपको दिखाई नहीं देता मैं गाना सुन रहा हूँ और आप भी चिल्लाए जा रहे हैं? अरे बेटा, मैं ये चारा उठाते उठाते गिर गया हूँ, अपने से उठ नहीं पा रहा, मेरी मदद कर दो। अच्छा ठीक है, उठा देता हूँ। हाँ बेटा, मदद कर दो मदद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। क्या पिताजी, अब मैं गाना सुन लूँ ना? हाँ बेटा ठीक है, जाओ सुन लो अपना गाना। ठीक है। अरे ये चारा उठवाना तो भूल ही गया, किससे बोलूं? अरे बेटा जरा इधर सुनो। जी कहिए पिताजी। बेटा गायों को चारा देना है, जरा उठवा दो, कब से भूखी पड़ी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। आप रहने दीजिए पिताजी, मैं उठा लेता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, जुग जुग जियो, एक तुम ही तो मेरा कहना मानते हो, बाकी सब तो एकदम नालायक ही हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आप आराम करिए पिताजी, मैं गायों को चारा खिला देता हूँ। हाँ बेटा ठीक है। देख रहे हो भाई बेचारे की हालत, इसके किसी बेटे ने भी इसकी सहायता नहीं। सही कहा, चार तो एकदम ही नालायक है, एक छोटा वाला है वो थोड़ी सुन लेता है। मेरे बेटे को देखो, आज वो कलेक्टर बन गया है और पूरे देश की सेवा कर रहा है। हाँ मैंने भी अपने भाई को पढ़ाया है और अब शहर में नौकरी करता है। इसकी तो किस्मत ही टूटी हुई है, इससे क्या बात किया जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, बहुत काम है। हाँ हाँ चलो। मेरे नारायण बेटों की वजह से आज पड़ोसी हमारे दरवाजे पर ताने दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। हे भगवान, अब तुझे यही दिन दिखाना था मेरी जिंदगी में, मेरी सारी मेहनत
सारी ईमानदारी मिट्टी में मिल गई। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी थी, पता नहीं क्या होगा। अरे पिताजी अभी क्या बोले जा रहे हैं, चलिए उठिए। अरे बेटा क्या बताऊं, तेरे भाइयों की वजह से आज लोग हमें खरी खोटी सुनाते हैं। आज पड़ोसियों ने सुनाई, कल कोई और सुनाएगा। पूरा समाज हम पर थू-थू करेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ तेरे इन भाइयों की वजह से। हाँ पिताजी आप सही बोल रहे हैं, हमें अपने बड़े भाई को सुधारना ही होगा। मैं उनके पास कुछ काम करने जाता हूँ तो मुझे भी क्या कर हमेशा भगा देते हैं, जैसे उनके में से एकता का पाठ ही खत्म हो चुका है। सही कह रहे हो बेटा, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा इस घर के भविष्य का। कोई तरकीब सोचो बेटा जिससे उन्हें सुधारा जा सके। सोचो बेटा कोई तरकीब। हाँ पिताजी मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बेटा, क्या पता उसी से कोई हल निकले। हाँ बहुत अच्छा बेटा, अब तो यही एक रास्ता है उन्हें सुधारने का। उन नालायकों को तो सुधारना ही होगा, वरना हमारे घर का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आगे दो उनको, देखो उनकी कैसी परीक्षा लेता हूं। बेटा सूरज डूब रहा है, सांझ होने को है, जरा अपनी माँ से पूछ खाना बनाया नहीं। हाँ पिता, तभी तो मैं कहूँ मेरे पेट में चूहे क्यों कूद रहे हैं। माँ खाना। हाँ बेटा बन गया है, ये ले जा। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है। आपके खाने की सुगंध से तो मेरी